میں اپنی جائیداد جوئے میں ہار گیا تھا۔ مجھے اپنا کاروبار واپس کھڑا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے مانگے تو اس نے صاف انکار کر دیا، جبکہ وہ کروڑ پتی تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور بھائی کی دولت ہتھیانے کے لیے میں نے بھائی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ ساری جائیداد میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں بہت خوش تھا کہ اب عیش سے ساری زندگی گزاروں گا، پر ہوش اڑ گئے جب اگلے دن ہی پولیس آئی۔ میں نے فوراً جعلی نوٹس دکھائے کہ پراپرٹی میرے نام پر ہے، لیکن قیامت تب ٹوٹی جب پولیس مجھے جیل لے گئی اور فیکٹری کے مالک نے 3 جوان لڑکیوں کو۔ وہ دن میرے لیے بے حد مشکل تھا جب میں اپنے بھائی کے منہ سے انکار سن کے واپس آ رہا تھا۔ باہر شدید بارش ہو رہی تھی۔ بھائی مجھے اندر تو بیٹھ جانے دے، ہم آرام سے بات کرتے ہیں، دیکھے باہر کتنی بارش ہو رہی ہے۔ میں نے تحمل سے بات کی تو بھائی نے نفی میں سر ہلا کے کہا، دیکھو اکرم، جو بات ہے یہیں پہ کرو، میں تمہیں اندر نہیں آنے دے سکتا۔ یہ جملہ میرے دل کو چھلنی کر گیا۔ لیکن کیوں بھائی، کیوں نہیں اندر آنے دے سکتے آپ مجھے؟ کیا ہمارا کوئی پردہ ہے؟ میں ابھی بھی طیش میں نہیں آیا تھا، بلکہ انتہائی پرسکون انداز میں سوال کیا تو وہ سنجیدگی سے بولے، اکرام جو بات ہے یہیں پہ کرو، مجھے کچھ کام ہے۔ میں ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا بولنے کے لیے میرے پاس تمام الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ بھائی، میں نے اپنی جائیداد ہار دی ہے جوئے میں، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میری بات مکمل ہوئے بغیر ہی وہ سپاٹ لہجے میں بولے، اکرام دیکھو، تمہیں تمہارا حصہ مل چکا ہے۔ یہ جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے یہ میری محنت کا ہے۔ تم نے اپنی جائیداد کو 2-3 گنا کرنے کے بجائے کوڑیوں کے بھاؤ جوئے میں ہار دیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے بھائی نے موبائل جیب سے نکال لیا اور کان سے لگا کے واپس اندر چلے گئے۔ میں نے انہیں پیچھے سے بلانا چاہا تو گارڈ نے مجھے روک لیا اور کہا، دیکھیں صاحب، آپ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ ہماری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یار تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا بھائی ہے وہ، سگا بھائی، مجھے جانے دو۔ وہ ابھی تھوڑا غصے میں ہے لیکن جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے گارڈ کو اپنی صفائی دینا چاہی، لیکن وہ بھی کسی ڈھیٹ نسل کا تھا۔ اس نے میری ایک بھی نہ سنی اور خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بارش میں بھیگ رہا تھا لیکن وہاں پہ کسی کو بھی میری پرواہ نہیں تھی۔ یوں ہی چلتے چلتے مجھے سڑک پہ ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل نیچے گر گیا۔ میری ٹھوڈی سے خون بھی بہنے لگا، لیکن وہاں پہ کوئی ایسا نہیں تھا جو میری پرواہ کرتا۔ میں نے وہی روڑا جو میرے منہ پہ لگا تھا اٹھا کے پوری قوت سے سڑک کے دوسری جانب اچھال دیا، پھر چہرہ آسمان کی جانب کر کے چلاتے ہوئے کہا، دیکھنا الیاس مظہر، تیرا جینا حرام کر دوں گا میں۔ یہ جس جائیداد پہ تو اٹھلاتا پھر رہا ہے یہ میں تیرے ہاتھ سے کھینچ لوں گا۔ ایک پھوٹی کوڑی نہیں رہنے دوں گا میں تیرے پاس۔ وہ دن میرے لیے بے حد مشکل تھا۔ میرے خیال سے میری جائیداد جا چکی تھی، رشتے جا چکے تھے، میری بیوی مجھے چھوڑ کے اپنے میکے چلی گئی تھی، اس نے بچوں کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اتنی برستی ہوئی بارش میں بیٹھنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ تک نہیں تھا۔ تو جا کے روٹی کھا کے اپنا پیٹ بھرتا۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ میرا بدن دھیرے دھیرے کانپنے لگا، کیونکہ بارش شدید ہو رہی تھی اور یہ بارش بھی جاتی سردیوں کی بارش تھی جو بیمار کر دیتی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں نیلے پڑنا شروع ہو چکے تھے، لیکن میں بھی ضد میں آ کے اسی بارش میں چل رہا تھا، ورنہ میرے لیے کیا مشکل تھا، کسی سے بھی دکان کے نیچے بیٹھ جاتا۔ پتہ نہیں کہ اس میں خود سے کوئی بدلہ لینا چاہتا تھا یا شاید خود کو اذیت پہنچانا۔ جب میری حالت بے حد خراب ہو گئی تو میں سڑک کی ایک جانب گر گیا۔ مجھے کوئی بھی ہوش نہیں تھا۔ باقی پوری رات میں یوں ہی سوتا رہا۔ شاید کوئی اور بھی میرے پاس تھا جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے دوائی دے رہا تھا، اور اسی نے اپنے پاس سے کمبل بھی میرے اوپر اڑا دیا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن نقاہت سے برا حال تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی لیٹا رہا۔ جب میری آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ میں خالی کمرے میں ہوں، جہاں نیچے فرش پر ایک کپڑا بچھا ہوا ہے اور اسی کپڑے کے اوپر میں لیٹا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ارد گرد ایک پانی کا گھڑا اور دیواروں پر پان کی پیکیں بھی بڑی واضح دیکھی جا سکتی تھیں۔ وہ کمرہ نسبتاً چھوٹا تھا اور چھت بھی کافی نیچے تھی۔ وہاں سے میں کوئی بھی اندازہ نہیں کر پایا کہ میں کس جگہ پہ موجود ہوں۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹا رہا، پھر ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلا تو وہ ہو جائے گا بے حد عجیب تھی۔ پتہ نہیں ہمارے شہر کا کون سا علاقہ تھا، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ کمرے سے باہر ہی گلی شروع ہو رہی تھی اور گلی اتنی تنگ تھی کہ جب تک رش کے دو لوگ ایک دوسرے سے آپس میں مس نہ ہو ان کے لیے وہاں سے گزرنا محال ہوگا۔ میں نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو عمارتیں بھی کافی اونچی تھی، بلکہ عمارت نہیں، وہ کافی سارے چوبارے تھے۔ آمنے سامنے کے چوبارے اتنے قریب تھا کہ ایک چوبارے میں کھڑے ہو کے سامنے والے چوبارے سے کوئی بھی شے لی یا دی جا سکتی تھی، اور وہ عمارتیں بھی کافی قدیم تھی۔ شاید میں پرانے لاہور میں موجود تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو صبح کا وقت تھا اور زیادہ رش بھی نہیں تھا، لیکن سڑک پر بکھرے ہوئے کوڑے کی وجہ سے اتنا اندازہ ضرور ہو پا رہا تھا کہ جو دکانیں بند تھیں وہ غالباً پھولوں اور پان کی دکانیں تھیں۔ لیکن مجھے یہاں پہ لایا کون؟
میرے بھائی کا گھر تو کافی بڑے علاقے میں تھا اور اس کے ارد گرد مجھے نہیں یاد کہ پرانا لاہور کہیں قریب پڑتا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم واپس آ کر کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ آخر مجھے یہاں پہ کون لایا ہے، کون اتنا مہربان ہے جس نے میرے سر پہ چھت گرائی۔ تقریباً مجھے 15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے جب ایک ہٹا کٹا آدمی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی رنگت بے حد سیاہ تھی اور اس نے ہاتھ میں ایک شاپر تھام رکھا تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، جانے کون تھا وہ، میں نے تو کبھی پہلے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اور بتا سونیا، نیند تو اچھی آئی نا؟ اس کے سوال سے مجھے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ وہی شخص تھا جو مجھے سڑک سے اٹھا کے اس کمرے میں لایا تھا۔ میں نے مسکرا کے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور درمیان میں شاپر رکھ کے کھولنے لگا۔ اب میری پوری توجہ اس شاپر پہ تھی، نہ جانے کیا تھا اس میں۔ جیسے ہی شاپر کھلا تو کمرے کی فضا حلوہ پوری کو خوشبو سے مہک گئی اور کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو میری بھوک جگانے میں بھی کامیاب ہو چکی تھی۔ میں للچائی نگاہوں سے وہ سب دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ آدمی مجھے دیکھ کے مسکراتے ہوئے بولا، سونیا کھا ہی لے اب، کیا ایسے ہی گھور گھور کے اپنی بھوک پوری کرے گا؟ میں کھسیا کے مسکرا دیا اور فوراً سے حلوہ پوری کھانا شروع کر دی۔ اب پتہ نہیں وہ حلوہ پوری واقعی میں اتنی لذیذ تھی یا پھر یہ میرے اندر کی بھوک تھی جس نے عام سے کھانے کو بھی اتنا مزیدار بنا دیا تھا۔ میں کوئی فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس آدمی نے ایک گھڑے سے پانی نکال کے مجھے دیا اور پھر خود بھی پیا۔ چلو اب بتا، کون ہے تو، کہاں سے آیا ہے؟ کیا تم مجھے رات کو یہاں پہ لے کے آئے تھے؟ اس بات کا تو مجھے یقین تھا کہ وہی شخص مجھے یہاں پہ لایا ہوگا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے یہ سوال اس سے پوچھ لیا۔ میرے سوال کے جواب میں اس آدمی نے پہلے تو مجھے ایک گندی سی گالی نکالی، پھر بولا میں ہی لایا ہوں، اگر نہ لایا ہوتا تو اب تک وہیں پہ پڑا ہوتا۔ چل شاباش، میرا ٹائم ضائع نہ کر، اپنی کہانی بتا، کون ہے تو اور وہاں پہ کیسے پڑا تھا؟ سب کچھ بتا، خبردار جو تو نے جھوٹ بولا تو۔ پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس آدمی سے جھوٹ بول دینا چاہیے، نہ جانے کون تھا وہ، لیکن پھر میں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ ختم کر دیا اور سوچا میرے پاس کون سا مال و دولت پڑی ہے جو سچ بتاؤں گا اور یہ ڈکیتی کر لے گا؟ نہ تو میرے پاس اپنا گھر ہے، نہ مال و دولت ابھی بھی، نہ بچے، پھر میں اس سے کیوں جھوٹ بولوں؟ مجھے سب کچھ سچ سچ ہی بتا دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ کر کے میں نے دھیرے دھیرے اپنی کہانی بتانا شروع کی کہ ہم 2 بھائی ہیں، میرے ابے کے 4 کلے تھے، ان میں سے 1-2 مجھے مل گئے اور 2 میں نے بھائی کو دے دیے۔ وہ شہر آ گیا تو میں بھی اس کے پیچھے شہر آ گیا۔ میں نے اپنے قلعے بیچ کے گھر بنا لیا اور اس نے اپنی جائیداد بیچ کر ایک کاروبار میں لگا دی۔ ایک شہر میں ہونے کے باوجود ہم دونوں بھائی بہت کم ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ یہاں پہ شہر آنے کے بعد مجھے جوئے کی عادت پڑ گئی۔ پہل تو میں ڈرتا تھا، لیکن جب بازیاں میں جیتنے لگا تو میں نے بغیر سوچے سمجھے رقمیں لگانا شروع کر دی۔ میری بیوی بچوں نے بڑا روکا مجھے، لیکن میں نہیں رکا۔ وہ لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو غصے میں آ کے کل والی بازی میں نے اپنی ساری جائیداد پہ لگا دی کہ جب یہ دوگنا ہو جائے گی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا اور اسے پچھتانا پڑے گا کہ وہ کس ہیرے کو چھوڑ کر گئی ہے۔ لیکن میری پھوٹی قسمت کی پہلی بازی میں ہی میں اپنی ساری جائیداد اور گھر ہار گیا۔ میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا۔ کچھ دیر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر جب حقیقت کا ادراک ہوا تو اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا کہ شاید وہی مجھ پہ رحم کھا لیا اور کچھ نہیں تو کم سے کم مجھے رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ تو ضرور دے دے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جو سوچا تھا، 1% بھی وہ سب نہیں ہوا۔ میرے بھائی نے تو مجھے گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا، کچھ آ کے وہ مجھے اپنی جائیداد دیتا یا اپنے گھر میں رہنے کو جگہ۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور اپنے گارڈ کو کہہ کے مجھے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا۔ پیارا جو بھی ہے تو، لیکن کم سے کم تو نے اس برستی بارش میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، جبکہ میرے اپنے بھائی نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں تیرا احسان یہ ساری زندگی نہیں بھولوں گا، تو جو کہے گا کروں گا، بس مجھے اپنے پاس رکھ لے۔ اپنی کہانی سنانے کے ساتھ ساتھ آخر میں نے اس حبشی کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کے منتیں کرنا شروع کر دیں۔ آیا کہیں میری کہانی سن کر وہ بھی مجھے یہاں سے نکال نہ دے۔ وہ دھیرے سے میرے کندھے پہ تھپکی دے کے بولا، چل چل پریشان نہ ہو، اگر تو شوقے کے پاس آیا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ کھانا تو نے کھا لیا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے تو کر لے، میں رات کو آؤں گا۔ تو پورا دن کیا کرے گا؟ بے اختیار میرے منہ سے یہ جملہ نکلا تو ایک کہا لگا کے بولا، پیارے دن میں ہمارا کیا کام، ہمارا کام تو رات میں شروع ہوتا ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، تبھی میں نے پھر پوچھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں تو وہ میرے باروں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ویسے جوا کھیلا ہے اور تجھے میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ میں کافی پریشان ہو چکا تھا۔ اب کی مرتبہ ویسے کہا کچھ نہیں تھا، لیکن میرے تاثرات دیکھ کے وہ سمجھ گیا تھا تو یہ جگہ بھی نہیں پہچان پایا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو افسوس سے گردن ہلا کے بولا، کوئی حال نہیں تیرا، ہیرا منڈی ہے یہ، اب سمجھ آیا
हीरा मंडी के नाम पे मेरे गर्दन के बाल एकदम से खड़े हो गए। मैंने कभी भी इस इलाके का रुख नहीं किया था। भले से मुझ में 17,000 गुनाह हों, लेकिन ये वाला एक गुनाह नहीं था। मैं एक लम्हे के लिए गुनाह गया। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि ना जाने मैं कितनी गुनहगार जगह पे खड़ा हूँ। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ तो शौका मुझे देख के मुस्कुराया और बोला, अरे क्या तू भी बाकी लोगों की तरह हमसे घिन खाने लगा है? मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं हाँ में सर हिला दूं, लेकिन उसी वक्त शोके का एहसान याद आ गया तो खामोशी से नफ़ी में सर हिला के बोला। वैसे ही शलवार में कुछ चला गया था। वो नरमी से खड़ा हुआ और मेरे कंधे पे अपना हाथ रख के बोला, हाँ अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन परेशान मत हो, मैं रात में दोबारा आऊँगा, फिर करते हैं बात। अभी भी तेरी खातिर उठ के आया हूँ कि कहीं भूखा ना हो। ये पैसे रख और दोपहर का खाना खा लेना। ये कहते हुए शोके ने अपनी शलवार की जेब से कुछ पैसे निकाल के मेरे हवाले कर दिए। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था वो पैसे लेने का, लेकिन मैं भी बेबस था। पेट मेरे साथ भी लगा था। अगर उसने रात में आना था तो कैसे तब तक मैं भूखा रहता। मुझसे तो भूख किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होती थी। जिस्म बुरी तरह से कांपने लग जाता था। मुझे पैसे देख के मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। जैसे ही वो गया मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है शोके को मेरे लिए फरिश्ता बना के भेजा गया हो। अगर वो गुनहगार है तो मैं कौन सा काम गुनहगार हूँ? मेरे लिए भी तो जुआ हराम है, लेकिन मैं खेलता हूँ। ये बात सोच के मैं एकदम से पुरसकून हो गया। अब मैं बाहर निकल के गली में घूम फिर रहा था। तभी मुझे एक दो घरों के दरवाजे खुले हुए दिखाई दिए और वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ भी नजर आईं। कुछ तैयार हो रही थीं और कुछ मलगुजे कपड़ों में थीं। मैंने अपनी निगाहों का रुख बदल लिया। कितनी ही देर मैं पुराने लाहौर में फिरता रहा, लेकिन इस सब के बावजूद मेरे दिमाग में अपने भाई के लिए नफरत पहले से ज़्यादा हो चुकी थी। बिला आखिर मैं एक पार्क में आके बैठ गया और सोचने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। पूरी उम्र यहाँ पे तो नहीं रह सकता, और वो भी हीरा मंडी, कभी भी नहीं। काफ़ी दिमाग लड़ाने के बावजूद मुझे कोई भी ऐसी तरकीब न मिली जो मैं अपने भाई के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता और उसे सबक सिखाने में कामयाब हो पाता। खैर मैं वापस अपने कमरे में आके दोबारा से सो गया, क्योंकि तबीयत अभी तक बोझल थी। अभी मुझे सोए कुछ ही देर हुई थी जब शोके ने आके मेरा कंधा हिलाया तो मैं हड़बड़ा के उठ बैठा। हाथ में बिरयानी की प्लेट लेके वो खड़ा हुआ था। ये ले बेगम जी ने ख़त्म दिलवाया था। मैं बिरयानी लेके खाने लगा और पूछा, कौन बेगम जी? और नरमी से बोला, बेगम जी जिनके पास मैं काम करता हूँ। तू काम क्या करता है? यूं ही बातों बातों में मैंने पूछा। डरेगा तो नहीं? वो एकदम शर्मा गया। मुझे उसका शर्माना बेहद अजीब लगा और हंसी भी आई। किसी जिन के फ़राइज़ तो अदा नहीं करता होगा तो फिर क्यों डरना? वो नफ़ी में सर हिला के बोला, जिनके नहीं करता, लेकिन कातिल के फ़राइज़ ज़रूर अंजाम देता हूँ। मतलब तुम यहाँ पे लोगों को मारते हो? मैंने हैरत से सवाल पूछा तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं यार, लेकिन एक तरह से तुम्हारी बात ठीक भी है। मैं यहाँ सिर्फ लड़कियों की हिफाजत करता हूँ। कई मरतबा बहुत अमीरजादे और रईस आ जाते हैं, फिर वो हर हाल में उन लड़कियों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे बहुत से गुंडे यहाँ पे हम वक्त मौजूद रहते हैं, ताकि कोई भी हलचल हो तो वो मामले को काबू कर सके। इसके अलावा हम लोग और भी लेते हैं ऑर्डर। वो किस बात का? मेरी हैरानी वहीं की वहीं मौजूद थी। अरे साईं हो तुम तो, काहे का जुआ खेलते हो जब तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं। चलो मैं बता देता हूँ, ऑर्डर मतलब सुपारी लेते हैं। किसी को भी कत्ल कराना हो, अपनी जगह से उठवाना हो, कोई कब्जा करवाना हो, ये सब काम हम लोग करते हैं। बल्कि हमारा एक पूरा सिस्टम है। हम लोग अपने इलाके की ना सिर्फ हिफाजत करते हैं बल्कि ये सब काम भी हमारी ज़िंदगी है। वो बोल के खामोश हुआ तो एक लम्हे के लिए मुझे शौके से खौफ महसूस हुआ। वाकई में वो देखने से कोई खूनी गुंडा महसूस होता था। मैं उससे डरता हुआ थोड़ा दूर जाके बैठ गया तो वो पेट पकड़ के हंसते हुए बोला, अरे तू तो बहुत ही डरपोक निकला यार। चल कुछ नहीं होता, डर मत, मैं तो तेरा अपना ही हूँ। जैसे तूने अपनी ज़िंदगी कहानी मुझे बताई वैसे ही मैंने बता दी। उसकी बात पे मैंने सिर्फ इस बात में सर हिलाया, हालांकि मुझे अब भी उससे डर ही लग रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया। इससे पहले मैं बोल के अपना ख्याल शौके को बताता वो सपाट लहजे में बोला, बता क्या आया है तेरे दिमाग में? मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे बोलने से पहले ही उसे कैसे पता चल गया कि मेरे दिमाग में कोई बात चल रही है। अभी मैंने ये भी शोके को नहीं पूछा था। तभी वो मुस्कुराते हुए बोला, यार ऐसे ही तो बंदे नहीं मारते हम, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 50% तो पता चल ही जाता है अगले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है या वो क्या बात करने वाला है। चल मुझे छोड़, अपनी बता क्या आया तेरे दिमाग में? मैंने हल्के लहजे में कहा, यार तू किसी को मारने का क्या लेता है? ये जुमला कहते ही मैं काफ़ी घबराया हुआ था। मेरे कंधे पे हाथ मार के बोला, तेरे लिए मुफ्त में ही मार दूंगा, बता किसे मारना है? मुझे क्यों लग रहा है जैसे तू अपने भाई को ही मरवाना चाहता है। जैसे ही शोके ने यह बात कही तो मेरी हैरत की मारे आंखें बाहर को उबलने को थीं। वो एक कहकहा लगा के हंसा और बोला, चुप चुप, ज़्यादा ना सोच। मैंने बताया ना चेहरा पढ़ लेता हूँ मैं। तुझे यहाँ इसीलिए लाया था कि तेरा चेहरा पढ़ लिया था मैंने कि मासूम है तू, हो जाएगा काम, लेकिन तुझे एक दिन और देता हूँ।
अच्छी तरह से सोच समझ के फैसला कर। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो मैं नहीं चाहता कि बाद में तू पछताता फिरे कि तूने अपने भाई को क्यों मरवाया या फिर उसे क्यों नहीं मरवाया। सो जो करना है सोच के करना मेरा वीर। ये कह के वो वहीं मेरी जगह पे लेट गया। मैं अपनी सोचों में गुम था। क्या मैं वाकई अपने भाई को मारने की कोशिश कर सकता हूँ? मेरे अंदर से एक ना आई, लेकिन तभी मेरी बगावत ने कुछ उस ना को हाँ में बदल दिया कि जब इससे तुम्हारा ख्याल नहीं तो तुम उसका ख्याल क्यों कर रहे हो? वैसे भी तो दुनिया में सैकड़ों लोग मरते ही हैं, उनमें एक मेरा भाई सही। तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ही मैंने अपना फैसला करने में कामयाब हो चुका था। तब तक शोका भी सो चुका था। मैं यूं ही जरा सा कमरे से बाहर निकला तो देखा वो गली तो सुबह तक उजाड़ और वीरान बनी हुई थी। एकदम से वहाँ गोया बाहर आ गई हो। पूरी गली में फूलों वाली दुकानें थी जो महक रही थी। उन दुकानों के ऊपर पीले रंग के बल्ब भी रोशन थे। सिर्फ इतना ही नहीं, चौबारों और घरों के दरवाजों में भी एकदम से बाहर आई हुई थी। रंगों रंग की लड़कियां बनाव सिंगार करके बालकोनियों, चौबारों और दरवाजों में खड़ी कह कहे लगा रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे वो नज़ारा बेहद पुरसकून लगा, लेकिन अगले ही लम्हे उन लड़कियों की निगाह मुझ पे पड़ी तो वो मुझ पे ही जुमले कसने लगी। मैं मारे शर्म के कभी इधर देखता तो कभी उधर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एकदम से वो रंगीन बुलबुला फट चुका था, क्योंकि तभी मुझे गली की दूसरी जानब से एक आदमी भागता हुआ दिखाई दिया। उसका सर फटा हुआ था और कपड़े लहूलुहान थे। बेचारा वो मुश्किल से भाग रहा था। उसके पीछे 3-4 लोग हथियार लेके उसी की रफ्तार से दौड़ रहे थे। शोके शिकार को पकड़, किधर है तू? चूहे की तरह बिल में घुस के बैठा है। उस आदमी को पकड़ने के साथ साथ वो शोके को भी ललकार रहे थे। मैं हैरानी से ये मंजर देख रहा था। चुबारों में खड़ी लड़कियों के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था, बल्कि वो तो यूं देख रही थी गोया ये मंजर उनके लिए कुछ भी नहीं, और उन्हें रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता हो। जैसे ही वो आदमी मेरे कमरे के करीब आया, एकदम से मुझे पीछे से धिक्का पड़ा और मैं गिरते गिरते बचा। जब मैंने होश संभाल के अपने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, अलबत्ता सामने गली में शोका उस आदमी को गर्दन से दबोच के खड़ा हुआ था। बता बे साले, क्या कांड करके आया है तू? वो उस आदमी को जबड़ों से दबोचे कुर्रा के पूछ रहा था। मैं तो खुद हैरत से खड़ा ये मंजर देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है जो मेरी इतनी तीमारदारी कर रहा है और मेरे सामने इतनी नरमी और मुस्कुरा के हर बात करता है। लेकिन उस वक्त वो कोई वहशी भेड़िया लग रहा था जिसके सामने अपना शिकार था और वो उसे एक लम्हे में चीर फाड़ के रख देना चाहता था। शोके, जान ले इसकी फ़ायदा नहीं है इसका दुनिया में रहने का। पीछे से किसी ने ललकार के कहा तो शोके ने ये तक न पूछा कि उस आदमी ने क्या किया है। देखते ही देखते उसने एक झटके से उस मासूम इंसान की गर्दन तोड़ डाली। इसके बाद पूछा, अबे यार बता तो क्या किया है साले ने? तो जिस आदमी ने उसे मारने का कहा था नरम समूह बना के बोला, मेरे पैसे उठा के भागा था चोर साला। अच्छा चल सही हुआ, एक चोर का बोझ तो दुनिया से कम हो गया। तो बड़े सुकून से अपने हाथ दीवार के साथ साफ करते हुए बोला। ये देखकर मेरा रंग एकदम से उड़ गया। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वो इस कदर जालिम हो सकता है। पूरी गली में एकदम सुकून था, कोई भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। जो आदमी उसके पीछे आ रहे थे आगे आया और शोके ने हाथ करके अपने माथे से लगाते हुए बोला, मुर्शद बड़ा शुक्रिया, चल हम चलते हैं। ये कह के उन्होंने उस आदमी की लाश उठाई और वहाँ से चले गए। मेरे तो रंग उड़े हुए थे। तभी शोके ने मुझे देख एक ज़ोरदार कहका लगाया और बोला, साईं तू तो इसी से डर गया। मैं अभी भी शौक में था। ना जाने कितनी देर लगी थी मुझे उस शौक से बाहर आने के लिए। यार तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा? तो वो मेरे कंधे पे थपकी दे के बोला, नहीं लगा यार डर, इसीलिए तुझे सोचने का वक्त दिया ताकि तू अच्छी तरह से सोच ले, वरना तेरे भाई को मारने से पहले भी मुझे बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। मैंने बमुश्किल थूक निगल के खुद को पुरसकून किया और हाँ, वक्त तो अच्छी तरह से सोच लूँगा। लेकिन कुछ देर बाद बैठा रहा, फिर मैं गली से बाहर निकल आया। मुझे तो बाहर गली में आते ही बहुत शर्म आने लगी, क्योंकि औरतों ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे और वो मुझे बार बार अपनी जानिब खींचती। वो गली मैंने बेहद मुश्किल से पार की, निगाहें नीचे किए बस तेज़ तेज़ कदम उठाते जैसे तैसे वहाँ से निकल आया। मैं नहीं जानता था कि किधर जा रहा हूँ। कुछ देर बाद एहसास हुआ तो मुझे समझ आया कि मेरा रुख अपने भाई के घर की जानिब है। जब ये एहसास हुआ तो मैंने वहीं से अपना इरादा बदल लिया और अपनी बीवी के घर चला गया। वहाँ जाके मैंने बच्चों से मिलने की बात की तो उसने खामोशी से मुझे मिलने दिया। मैंने अपने बच्चों को देखा तो वो इंतहाई दुबले पतले हो चुके थे। उनके चेहरों पे कोई भी रंग रूप नहीं था, वो इंतहाई गरीब लग रहे थे। मैंने अपनी इस बीवी से पूछा, इन्हें खिलाती पिलाती नहीं हो कुछ? पहले तो वो मुँह बना के खड़ी रही, उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा, बताओ क्या तुम इन्हें कुछ नहीं खिलाती हो? मेरे घर से तो बहुत रोक से लाई थी कि अपने भाई के घर लेके जाऊंगी बच्चों को, कम से कम वहाँ पे तो ये भूखे तो नहीं रहेंगे, एक एक रुपए को तो नहीं तरसेंगे। मैंने ये ताना दिया तो वो एकदम से रोने लगी।
मुझे उसे देख के यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही नगीना है जो बड़े करोफर से मुझसे लड़ के गई थी। वो रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई, जबकि मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी। क्या हुआ नगीना, तुम ठीक तो हो ना? मेरे पूछने पर वो नफ़ी में सर हिला के बोली, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं ठीक हूँ, मुझे अपने साथ वापस ले जाओ। लेकिन तुम क्यों नहीं रह सकती यहाँ पर, तो तुम बड़े करोफर से आई थी। वो मेरे आगे हाथ जोड़ के बोली, मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें छोड़कर। मैं अपने जिस भाई पर फ़ख्र करती थी उसी ने मुझे जलील करवा दिया। उसकी बीवी मेरे बच्चों को मारती है। हफ्ता हो गया है सिर्फ हमें एक वक्त का खाना देती है। अपने घर में बेशक खाना नहीं था, लेकिन कम से कम इज्जत तो थी। मेरे बच्चों का बाप उनके सर पे मौजूद था। मुझे माफ़ कर दो, अभी हमें अपने साथ ले चलो। अपनी बीवी की बात सुन के मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। कैसा इंसान था मैं कि मैंने अपनी बीवी और बच्चों की ही ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को तसल्ली दी कि तुम लोग परेशान नहीं हो, हम जल्द ही घर वापस जाएंगे। अभी मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मेरे पास खुद कोई ठिकाना नहीं, तो मैं तुम लोगों को कहीं पे भी नहीं रख सकता। अभी कुछ इंतज़ार करो, बहुत जल्द ही मैं कर ले जाऊंगा तुम्हें यहाँ से। मैं उन्हें तसल्ली देकर तो आ गया, लेकिन अब मुझे कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा था। बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, जो मैं अपनी आस्तीन से साफ कर रहा था। मैं चलता जा रहा था, जबकि दिमाग में बुरी तरह से झक्कड़ चल रहे थे। तभी मुझे दूर से आती हुई एक गाड़ी दिखाई दी। एक मर्तबा तो दिल चाहा कि उस गाड़ी के नीचे कूद के अपनी जान दे दूं, लेकिन फिर ये सोच के रुक गया कि अगर मेरी जान चली गई तो मेरे घर वालों को कौन पूछेगा। अगर किसी की जान जानी चाहिए तो वो मेरा भाई ही है। मैंने उसी वक्त अपने भाई को फ़ोन किया और फ़ैसला कर लिया कि अगर मेरी मदद कर दे तो मैं उससे कुछ भी नहीं करूँगा। बस जितनी मदद चाहिए कि एक जानिब हो जाऊँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं भाई जो सबक सिखाऊँगा कि अगर किसी एक को मरना अटल है तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई ही होगा। मेरा फ़ोन भाई ने उठा लिया। मैंने छूटते ही कहा कि मुझे मदद चाहिए, जैसे भी हो आप मेरी मदद करें, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरी पूरी बात सुनने के बाद भाई संजीदगी से बोला, देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, आइंदा फ़ोन भी मत करना। ये वो लम्हा था जब मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी जान की नहीं बल्कि अपने भाई की जान की कुर्बानी हर हाल में दूंगा। अगर उसे मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे भी बिल्कुल नहीं है। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे थे तो भला उन्हें मैं कैसे मरने दे सकता था, लेकिन मेरे अंदर फिर भी कहीं कोई नरम गोशा मौजूद था। शोके के पास वापस जाने से पहले ना चाहते हुए भी मैं अपने भाई के घर गया, लेकिन गार्ड ने मेरे साथ वही हाल किया जो पहले किया था। यानी पहले तो मुझे मना कर दिया, जब ज़बरदस्ती मैंने घर के अंदर जाने की कोशिश की तो धक्के मार के मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैं मज़ीद बिफर गया। मैं गुस्से में तिल मिलाता हुआ वापस आया और देखा शोका वहीं गली में बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं उसके पास गया और कहा, मैं अपने भाई को मरवाना चाहता हूँ, बदले में जो कहोगे दूंगा तुम्हें। वो मेरे सीने पे हाथ रख के बोला, यार ठंडा हो और दोबारा बता सोच के कि क्या करना है, ऐसे ही किसी पछतावे की नज़र न लग जाना। मैंने उसे तेज़ निगाहों से देखा और कहा, अब सोचने समझने का वक्त ख़त्म हो गया है, मैंने जो कहा है वो ही करो। अपने भाई का अता पता मैं बताता हूँ तुम्हें, बस तुम्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा दो। और इसके अलावा एक काम और भी है। अब की बार शोका मुझे कलाई से थाम के कमरे में ले आया और बोला, प्यारे यहाँ कर, जो बात करनी है वहाँ मुनासिब नहीं है। मुझे भी इस बात का एहसास हो चुका था, लेकिन मेरे असाब बुरी तरह से तने हुए थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और कहा कि जिस भाई को मेरा ख्याल ही नहीं, मैं उसका ख्याल क्यों करूं? मुझे नहीं अपने भाई का कोई ख्याल, बस किसी तरह उसे इस दुनिया से मिटा दूं। अच्छा, और दूसरा काम क्या करना है? ये कहते हुए उसने एक प्याले में पानी भर के मेरे सामने कर दिया। मैं पानी पी के कुछ हद तक पुरसकून हुआ। दूसरा काम यह है कि उस जगह के कागज़ बनवाने हैं। वैसे तो भाई की जायदाद मुझे ही मिलेगी, लेकिन उस जगह का कोई सबूत होना चाहिए मेरे पास। अगर कल को किसी ने आके कुछ पूछ लिया तो क्या करूँगा मैं? मेरे पास दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। शोके ने इस बात में सर हिलाया और कहा, तेरा काम हो जाएगा, परेशान ना हो, बस मुझ पर यकीन रख। मैं वहीं बैठ गया। मेरा दिल बुरी तरह से डूब रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने किए गए फैसले पर डट चुका था। अगले दिन तक मेरे दिल की हालत बहुत ख़राब थी। शोके को मैं अपने भाई के मुतालिक बता तो चुका था, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था। अगली सुबह भी मैं सोया ही पड़ा था जब शोका आया और मुझे उठाया। मैं हड़बड़ा के उठ तो बैठा, लेकिन हैरत से आंखें फाड़े उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। चंद लम्हे लगे थे मुझे दुनिया में वापस आने के लिए। इसके बाद मैंने पूछा, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत तो है ना? उसने जेब से कुछ कागज़ निकाल के मेरे सामने कर दिया और कहा, यह तेरा दूसरा काम हो गया। एक लम्हे के लिए मेरे हाथ कांपे, लेकिन फिर मैं मुतमईन हो गया और कागज़ देखे। पढ़ा लिखा तो था नहीं मैं, मुझे क्या पता था कि क्या लिखा है क्या नहीं। शोके पर ही यकीन कर लिया। फिर पूछा, और पहले काम का क्या बना? तो वह हंस के बोला, प्यारे, पहले के बाद ही तो दूसरा काम किया है। एकदम से जैसे मेरे अंदर खामोशी उतर गई।
ना जाने कितनी देर मैं यूं ही बैठा रहा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई में मेरे भाई की मौत हो चुकी है और उसका खून किसी और ने नहीं, मैंने ही करवाया है। क्या वाकई मेरे भाई को मार दिया? मेरे कहने पर वो एकदम गुस्से से बोला, यार तेरे कहने पे ही मारा है, कौन सा मुझे इल्हाम हो गया था उसे मारने का? मैं गड़बड़ा गया क्योंकि शोके की दोस्ती अच्छी थी, ना ही दुश्मनी। मैंने पानी पी के खुद को पुरसकून करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया। अभी तक मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, पूरा जिस्म धीरे धीरे लरज़ रहा था। मैंने उन कागजात को अपनी जेब में डाल लिया, लेकिन एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि उन कागजात को फाड़ दूं। ऐसा शायद मैं कर भी देता अगर उसी वक्त मेरी आंखों के सामने मेरे मासूम बच्चे ना आए होते तो। चल शोके, अपने ठिकाने पे चलते हूँ। अब मैंने उसे मना कर दिया कि अभी मत जा प्यारे, एक मर्तबा कफन दफन सब होने दे, इसके बाद देखना तू। उसकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी। सो मैं खामोश हो गया और पूरा दिन अजीबोगरीब जलजलों में ही रहा। 2 दिन शोके के मना करने पे मैं रुका रहा और वहाँ नहीं गया। जब तीसरे दिन गया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, न गार्ड, ना कोई बंदा, ना बंदी की ज़ात। मेरे साथ शोका भी था। मैंने उससे पूछा कि ये सब लोग कहाँ जा सकते हैं, तो उसने बताया कि वो लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। बस वैसे भी अब ये जगह तेरी ही है और तुझे ही यहीं पे रहना है। अगर कोई होता तो उसे निकालना मुश्किल था। मैं खामोश हो गया। वो बिल्कुल सही कह रहा था। उस घर में दाखिल होते हुए मेरे दिल में अजीब व गरीब सी टीस से उठने लगी, जिन्हें मैं दबाता रहा। वो घर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। सामान सारा कमरों में बंद था और वहाँ पे ताले लगे थे। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने परेशानी से शोके को पूछा तो वो कंधे उचका के बोला, देख ले प्यारे, जो तुझे बेहतर लगे वही कर। क्या मैं अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे ले आऊँ? देख ले। शोका एकदम से यूं हो गया जैसे उसका किसी भी मामले में कोई लेना देना नहीं। मुझे उस पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। कहता भी तो क्या कहता। मैं वहीं से अपनी बीवी के पास गया तो आज भी उसकी हालत बिल्कुल यूं ही थी। मुझे देखते ही वो रोने लग गई। बच्चे भी भाग के मेरे पास आए और मेरे गले से लग गए। तुम हमें लेने आए हो ना? मेरी बीवी ने रूहान से लहजे में पूछा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मेरे दिल पे बर्छियाँ चल रही थी। अपने भाई की जान लेने के बाद मैं अपनी बीवी बच्चों को छत और खाना देने के काबिल हो सका था। काश जो गलती मैंने की थी वो मैं कभी ना करता और आज इतनी बड़ी नौबत ना आती। चलो, मैं लेने आया हूँ तुम लोगों को, जो कुछ है यहीं पे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। क्या तुमने घर ले लिया? मेरी बीवी ने जल्दी से पूछा तो बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें बेदर्दी से पूंछ कर मैंने सर हिलाया और कहा, हाँ, तुम लोगों के लिए आपकी मर्तबा बड़ा और महंगा घर लिया है, जहाँ पे कोई भी तुम लोगों को परेशानी नहीं होगी, जहाँ खाना पूरा मिलेगा। मेरे बच्चे भी एकदम खुशी से झूमने लगे। शौके ने मुझे कुछ पैसे दिए थे जिनका मैंने रिक्शा करवाया और उन्हें अपने साथ अपने भाई के घर में ले आया, जो कि अब जाली तौर पर मेरा हो चुका था। घर के अंदर दाखिल होते हुए एक लम्हे के लिए मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पे पुलिस खड़ी थी। मैं मुड़ भी नहीं सकता था क्योंकि पुलिस वाले मुझे देख चुके थे। इससे पहले मैं जाने के लिए पलटता, एक पुलिस एहलकार ने मुझे बुलाया और कहा, कौन है तू बे, इधर आ। अब मेरे पास कोई बहाना भी नहीं था। मैंने खामोशी से जेब से वो कागजात निकाल के पुलिस वालों के सामने कर दिया और कहा, इस घर का नया मालिक मैं हूँ। पुलिस वाले ने बड़े सुकून से वो कागज़ देखा और कहा, इसका मालिक कहाँ पर है तू? मैंने बगैर डरे झिझके कहा, वो मर चुका है। मरने वाले के साथ तेरा क्या ताल्लुक था? नया सवाल आया। अब की मर्तबा एक लम्हे के लिए मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा, जिससे मैंने जल्दी से पूछ के कहा कि मरने वाला मेरा बड़ा भाई था। अगर ये कागजात मेरे पास ना होते तब भी जायदाद मेरे ही हिस्से में आनी थी। मेरी बात सुनते ही पुलिस वाले ने मुझे कॉलर से पकड़ लिया और बोला, प्यारे, ये तो हम तय करेंगे कि जायदाद किसके हिस्से में आएगी और किसके हिस्से में नहीं। चल, अभी तू थाने पे अपनी बीवी बच्चों को भी लेके चल। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मेरे पास कागजात हैं। मैंने ये बात कही तो पुलिस वाला खामोशी से मेरी बात पे कान धर के मुझे गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले गया। मेरे बीवी बच्चे भी हौनक बने मेरे साथ ही थे। मेरी बीवी बार बार इशारों से यही पूछ रही थी कि हम क्यों थाने जा रहे हैं, तुमने ऐसा क्या कर दिया? चूँकि मेरे पास देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। मैं खामोशी से मुंह नीचे करके बैठा रहा। थाने पहुंचते ही देखा तो वहाँ पे 3 लड़कियां मौजूद थीं। तीनों ही तकरीबन 15, 16 और 17 साल की लग रही थी। गोया उनमें बहुत कम वक्फा था। मैं उन्हें नज़रअंदाज करके कुर्सी पे जाके बैठ गया, जबकि पुलिस वाला बोला, ये कुर्सी पे ठाठ से बैठने के बजाय इन लड़कियों से पूछो जिनके बाप की जान तुम्हारे कहने पे ली गई है। मेरी रंगत फक हो चुकी थी। मैं मर के भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि शोके ने सारा भांडा फोड़ दिया।
क्या कह रहे हैं आप? मैंने किसी को नहीं मारा। ये तो जायदाद तो आप बता रहे हैं तेरे भाई की नहीं बल्कि एक फैक्ट्री के मालिक की जायदाद है। तेरे भाई की जो जायदाद है वो ये 3 लड़कियां हैं और इन लड़कियों की कफालत भी अब अपने बच्चों के साथ साथ तेरे ज़िम्मे वाजिब है। नहीं, वो मेरे भाई का घर था, वो बहुत अमीर है। मैंने घुग्या के बात करना चाही तो वो थाने वाला कहकहा लगा के बोला, अबे किस दौर में जी रहा है तू? तेरा भाई किसी फैक्ट्री का मालिक नहीं था, ना ही वो घर तेरे भाई का है, बल्कि तेरा भाई उस घर में माली था और वहीं पीछे क्वार्टर में अपनी उन 3 बच्चियों के साथ रहता था। तूने ना सिर्फ अपने भाई को मारा बल्कि इन बच्चों को भी यतीम कर दिया, सिर्फ अपने हसद और लालच में। अब और कुछ कर या ना कर, पहले तो अपनी सज़ा भुगत और उसके बाद इन बच्चियों का भी ख्याल रख। ये सुन के मैं धड़े मार मार के रोने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। जिस काम में हाथ डालता था वो काम बर्बाद हो जाता था। मैं बुरी तरह से रोता हुआ अपना सर में थप्पड़ मार रहा था। तभी वहाँ पे शोका भी आ गया और मैं चिल्ला के बोला, तूने अगर यही करना था तो मेरे भाई की जगह मुझे मार देता। पता नहीं उस वक्त मेरे रोने में क्या बात थी, पछतावा, गुस्सा, जिम्मेदारी का बोझ। मैं रोता रहा, सब थाने वाले मुझे देखते रहे। तभी मेरा भाई भी ना जाने कहाँ से आ गया। इसके बाद जो हुआ वो अलग कहानी थी। बाद में शोके ने बताया कि उसने मेरे भाई को मारा ही नहीं था, बल्कि जो हुआ सिर्फ नाटक था ताकि मुझे मेरे लालच का अंजाम मिल जाए। इसके बाद शोके ने ही पैसे दिए जिसे हम दोनों भाइयों ने कारोबार किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ना सिर्फ कमा रहे हैं बल्कि अपने घर को भी चला रहे हैं। शोका जैसा भी है मगर मुझे उस जैसा नेक इंसान आज तक नहीं मिला।